कोई तेरे जवानी को तुझ न जाने। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरे जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरे जवानी को तुझ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरे जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरे जवानी को तुझ न जाने। हम लोग अभी एक बेंगोली गाना गाएंगे जो हम लोग जानते हैं, जिसु तुम्हारे भालोबासेছি। जिसु तुम्हारे ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। আসে সমুদ্র পারে যদি তুফান ভরে, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আসে সমুদ্র পারে যদি তুফান ভরে, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আমি তোমার নাম ধরে বেয়ে যাব। আমি তোমার নাম ধরে বেয়ে যাব। জীবন তরণে চিরদিন প্রভু তোমায় ভালোবেসেছি। প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, পথেরায় না কোনো সকল সন্দেহ। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, পথেরায় না কোনো সকল সন্দেহ। জানি তোমার নামেতে পার হয়ে যাব। জানি তোমার নামেতে পার হয়ে যাব। জীবন সাগর একদিন প্রভু তোমায় ভালোবেসেছি। প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। যদি মরণ আমার প্রভু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছো পাশে। যদি মরণ আমার প্রভু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছো পাশে। এমনি করে যেন পার হয়ে
একটা দিন প্রভু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। अभी हम लोग इंग्लिश गाना गाएंगे, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। Create in me a clean heart, O Lord, and renew thy spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, and renew thy spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. We'll sing one more song. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Thank you. What a joy is it for us to gather in the presence and in the house of the Lord. क्या ही आनंद का बात है कि हम परमेश्वर के सम्मुख और उसके घर में उपस्थित हैं। When Jesus was resurrected, जब यीशु जी उठा था, the disciples were very discouraged. उसके चेले बहुत ही हताश थे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. और उन्होंने उन्हें सांस देकर कहा कि आप पवित्र आत्मा स्वीकारें। For 10 days in the upper room, they waited to receive the Holy Spirit. 10 दिन वे ऊपरी कोठरी में प्रतीक्षा किए पवित्र आत्मा के लिए। Whenever we humble ourselves, जब भी हम अपने आप को नम्र करते हैं, and we wait for the outpouring of the Holy Spirit, और जब हम इंतजार करते हैं पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए, the Holy Spirit will bless us with His presence. पवित्र आत्मा हमें आशीष करेगा अपनी उपस्थिति से। And so in a special way, I would like to welcome every one of you for the 5th day of the 10 days of prayer. और इसलिए विशेष तौर से मैं आप सबों को स्वागत करना चाहता हूँ इस 10 दिन की प्रार्थना सभा का 5वां दिन में। We are almost in the middle or 50% of our meeting. और हम अपने इस कार्यक्रम का आधा भाग में हैं। We are all here to walk with God and be intense and get all the more deeper in our relationship with God. हम यहाँ पर हैं परमेश्वर के साथ सहभागिता और
और गहराई कर से परमेश्वर में बनने के लिए। This morning, it would be nice if we can all open our hearts and go to the Lord. और यह आज का सुबह हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर के सम्मुख आएं। Shall we all stand as we have our season of prayer? आइए हम सब खड़े हो जाएं जैसे हम अपनी प्रार्थना के समय में जाते हैं। Okay. The first one will be adoration. Heavenly Father, thank you, Lord, because you alone are worthy of our praise, our honor, our glory, because only you alone are worthy to be praised. We adore you this morning. पिता परमेश्वर तू स्तुति का योग्य है, क्योंकि तू महान है, प्रेमी है और जीवित परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रशंसा तेरे नाम को देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबों को यह समय दिया है। Lord, we thank you and we praise you because we belong twice to you, Lord, through creation and redemption. Amen. Amen. सारी आदर और महिमा प्रशंसा तुझी को देते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो भी सृष्टि की गई है सब हमारे लिए आपके महान प्रेम को हम आमीन। Next is confession. Father, we have come here with human weakness and frailty, and we confess our sins, our spiritual lethargy. We confess our sins of not spending time with the Word of God. We confess our time of not kneeling down. We confess our time of not meditating. We confess of not reaching out to souls in Kolkata. We confess our sins. Forgive us, Lord. माफी की योग्य नहीं, क्योंकि आपने जो माफ करते हैं प्रभु, हम पापी भी होते हैं, आपको चलो जाते हैं, हमारे गुनाह आप पिता परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम तेरे खिलाफ गुनाह किए हैं, तेरे आज्ञा मुताबिक हमने नहीं चला है। हम हमें क्षमा चाहते हैं पिता, हमें क्षमा कर। Amen. Amen. Son of David, have mercy on us. Lord, we are sinners. Please forgive us. Yes, Lord. Next is thanksgiving. Father, we thank you for Jesus. आमीन। We thank you for the Holy Spirit. We thank you for this 10 days of prayer. We thank you for the meeting this morning. Bless us, Lord, with your presence. धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है और ऐसा योजना बनाने में सफलता दी है, इसके लिए धन्यवाद। जो ऑपरेशन हमारे बीच में है, आपको सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर मौका के लिए जहाँ हम तेरे बच्चे हम एक साथ हो सकते हैं तेरे चरण में और तुझसे हम सीख सकते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें बहुत सारे लोगों के बीच में से चुन के निकाला है ताकि हम तेरे नाम का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद करते हैं पिता कि हमें इस और एकत्रित किया है कि आपका महिमा की। Next is supplication. Father, I pray that every H4K pioneer will be filled with the Holy Spirit. That every H4K pioneer will receive the spiritual gifts. That every H4K pioneer will be endued with power from high. Enable, empower them to live a victorious Christian life. I pray that you meet their needs. I pray that you give the power of God. I want to pray for those that are watching us on Zoom and in the YouTube. May the love of God reach them. Please, Lord. प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे H4 के पाइनियर्स हैं जो बीमार हैं उनको तू स्वस्थमय जीवन तू प्रदान कर। हमारे बीच में जो भाई बहनें हैं जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। रोशन खुजूर को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो भेंगरा को तेरे हाथ में सौंपते हैं।
बिंजू और जिमी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को पिता परमेश्वर तू अपने चंगाईमय हाथ से चंगाई दे और उन्हें एक तंदुरुस्तमय जीवन दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तू हमें समर्थित बना तेरे आत्मा के द्वारा, ताकि पूरे कलकत्ता शहर को हम तेरे राज में तैयार करने सके। Lord, we're praying that you help us so that we all may overcome evil with good. निवेदन चढ़ाते हैं प्रभु, विशेषकर हमारे बीच में जो बुजुर्ग हमारे प्राचीन कहते अग्रवाल के लिए जो इंसुलेंस का वीडियो ले रहा है परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह द्वारा जीवित है और आगे भी आपकी दया প্রার্থনা করি করুণাময় সাগের জীবন সদা প্রভু তোমাকে আবার পবিত্র নামে ধন্যবাদ প্রশংসা মহিমা গৌরব করি। তুমি আমাদের জীবনে একটা সুন্দর উপহার দিয়েছো প্রভু, যেন আমরা তোমার বাক্য নিয়ে ধ্যান করতে পারি প্রভু। এই সময় বিশেষ প্রার্থনা করি প্রভু কলকাতায় যত পায়রা আছে প্রভু, তুমি প্রত্যেকে তোমার সেই পবিত্র আত্মা সেচন করো প্রভু, প্রত্যেকের অন্তরে তুমি কথা বলো প্রভু, তার মধ্যে যেন তোমার গৌরব হোক প্রভু। প্রত্যেকে আশীর্বাদ করে এই কলকাতার মধ্যে দিয়ে তোমার সেই জীবন্ত বাক্য প্রতিটি মানুষকে আমরা তুলে ধরতে পারি। সেই জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা জ্ঞান বুদ্ধি দাও প্রভু। তোমাকে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করি, আমাদের পাপ ক্ষমা করি, পাপ করা যিশু তোমার নামে চাই। In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated, please. No, we have opening song. Yeah. Opening song has requested. I want Mr. Vishal to kindly come forward. Before we have the opening song, इससे पहले कि हम प्रारंभिक गीत में जाएं, we want to introduce our speaker today. आज हमारे वक्ता को हम आपसे परिचित करना चाहते हैं। None other than the director of Kolkata Metro Region. और ये कोई नहीं बल्कि हमारे कलकत्ता मेट्रो रीजन के अध्यक्ष हैं। Whenever God gives a leader, और जब भी हमें कोई अगुवा परमेश्वर देता है, heaven always chooses and heaven does not make any mistake. और स्वर्ग कभी कोई निर्णय लेने में गलती नहीं करता है, परमेश्वर हमेशा सही निर्णय लेता है। And it is always a double privilege to have a man who is godly. और ये हमारे लिए आशीष की बात है कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु का भय मानता हो, Who is a prayerful person. और जो प्रार्थनामय जीवन जीता हो। And it's very rare to find a leader who is also a good pastor and an evangelist. और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई ऐसा अगुवा हो जो एक पास्टर भी रहे और एक अच्छा प्रचारक। This morning I am very humble to praise God that He has given a leader who leads us in a spiritual way. और हमारे बीच में आज ऐसा अगुवा है जो हमें अगुवाई करता है आत्मिक तौर से, Who has the burden and the passion for winning souls. और उसके पास वचन के लिए एक जिम्मेदारी है। And so this morning we would like to welcome him right after the special song. और हम उसको एक खास गीत के बाद हम अनुमति देते हैं। Pastor Sujal Christu, may God use you mightily. हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सुजल किसको आपको परमेश्वर बहुतायत से उपयोग करे। And under your godly leadership, may everyone here receive the Holy Spirit. और आपकी अगुवाई में हर एक यहाँ पवित्र आत्मा प्राप्त करे, That our churches will be revived. कि हमारा ये कलीसिया जागृत हो जाए, That all of us will be different people after the 10 days. और इस 10 दिन के बाद हम सब पुराने मनुष्य ना रहे, हम बदल That our जाए, lives will be changed. हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, Our hearts will be surrendered to God. हमारा हृदय परमेश्वर पर समर्पित हो। Those that were with us that say, hey, is that the same person? और जो हमें देखते हैं वे उनके मन में ये आना चाहिए, क्या ये वही व्यक्ति है? God, the Holy Spirit will change you this way. परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस सप्ताह हमें बदलेगा। May God use Pastor Sujal mightily this morning. हम आशा करते हैं पास्टर सुजल को पवित्र आत्मा बहुतायत से उपयोग करे। Before that, we will prepare our hearts for this special song. और उससे पहले हम एक खास गीत के दौरान हम अपना हृदय को तैयार करेंगे। सॉन्ग लीडर्स,
यह गीत अंग्रेजी पुस्तक में भी मिलता है, होवर ओवर मी होली स्पिरिट, हे पवित्र आत्मा। आप लोग जानते हैं तो आप लोग साथ गाइएगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ सोमवीर को सुंदर गाना के लिए। कर भरपूर, हमें क्या चीज से भरपूर होना है। ये जो 10 दिन का जो सभा रखा गया है, निश्चित तौर से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए। यही उम्मीद लेके हम आए हैं यहाँ पर, और इसी उम्मीद से ही हम इस 10 दिन का प्रार्थना सभा को रखे हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा से हम भरे जाए। हमने सीखा है अब तक कि बिना पवित्र आत्मा से हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ पवित्र आत्मा का समर्पण शक्ति हमें चाहिए। आप कितने भी ज्ञान रखते हो, आप कितने भी अनुभवी हो, और कितना भी आप टैलेंटेड हो, यदि आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर फ्रेडरिक को, जिसने मेरे विषय इतना सुंदर बातें कहे। मैं नहीं सोचता कि मैं योग्य नहीं मानता अपने को, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में अब तक बना है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मुझे आज उपयोग करे, और परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम उसके लिए अपना महिमा प्रशंसा उसकी गवाही हो सके। Thank you, Pastor Frederick, once again, wherever you are. I hope you can hear me. I thank you so much for what you have said on behalf of me, for me. आप लोगों ने जिस तरीके से देखे हैं सामने शीर्षक
लिखा हुआ है पवित्र आत्मा और पूर्ण जीवन, पुनर्जीवन, पुनरुत्थान, होश में आना। मैंने कई शब्दों को वहां लगाया है। हो सकता था मुझे एक ही शब्द लगाना चाहिए, पुनर्जीवन या पुनरुत्थान या होश में आना। एक ही शब्द से हम समझ सकते थे, लेकिन मैंने कई शब्दों को लगाया ताकि हमें आसान हो कि हम समझ सके। कई बार हम एक शब्द में शायद हम घबरा जाते हैं, क्या चीज हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा और एक दो शब्दों को मैं जोड़ सकूं ताकि हम आसान तरीके से समझ सके। पवित्र आत्मा, पूर्ण जीवन। ये पूर्ण जीवन जो है कब होना चाहिए, कब होता है? पूर्ण जीवन कब आता है या होता है, कब? हाँ, जब आंखें खुल जाती है। और एक बार बताइए। जब आंखें खुल जाती है। जब आंखें खुल जाती है। मैं जानता हूं आप लोग जो भी जवाब देंगे सही जवाब होंगे। पुनर्जीवन या पुनर्जन्म या पुनरुत्थान मृत्यु के बाद होता है। पुनरुत्थान कब होता है? जब कोई मर जाते हैं उसके बाद ही उसका जीवन और दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक नहीं मरते हैं तो पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। कोई मरता है तभी उसके बाद ही और एक जीवन प्राप्त कर सकता है, राइट? यीशु मसीह जिस तरीके से इस दुनिया में आए, उसने मारा गया, फिर क्या हुआ? उसने पुनरुत्थान, जी उठा मरने के बाद। और एक सवाल, हमारे जीवन में सबसे दुखद, भयानक, दर्दनाक घटना क्या है? मृत्यु। सबसे सुखद, खुशी, आनंद का समय क्या है? पुनर्जन्म। अब देख सकते हैं यहां पर मृत्यु जो है दर्दनाक घटना, दुखद घटना है, भयानक। लेकिन पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, ये क्या है? एक खुशी, आनंद का जीवन है। क्या आज आप और हम ये आनंद, खुशी, ये जीवन हम क्या अनुभव कर सकते हैं? क्या हम अनुभव कर रहे हैं या सिर्फ हम कुरकुरा रहे हैं कि यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही बना के हम हैं? कई बार यही होता है कि नहीं? लेकिन आज हम वचन में जाएंगे, आधारित होकर वचन में, और देखेंगे हम किस तरीके से हमारा इस जीवन में हम और एक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से कहा कि सबसे दुखद घटना क्या है? क्या कोई जाना चाहता है इसके अंदर में? कोई जाना चाहता है? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। लेकिन जाना है भाई और बहन, लेकिन जाना है। यदि हम वहां जाना नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना है? मसीह यीशु में बने रहना है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो फिर क्या होगा? हमें आज मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, जीवित का परिभाषा क्या है? एहसास होगा, मैं जीवित हूं, एहसास होगा। एहसास होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग लाइफ? दर्द होगा, दर्द होगा, पेनफुल एक्सपीरियंस, पेन, और क्या? मूवमेंट, देयर विल बी मूवमेंट व्हेन यू आर अलाइव, यू विल मूव अराउंड। और भला बुरा का सोच पाएंगे, हाँ, भला बुरा का सोच पाएंगे, हाँ, भला बुरा को सोच पाएंगे, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और क्या? मैं जानता हूं जो भी आप जवाब देंगे सही होगा, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। बहुत से जवाब मैंने पाया, भला बुरा का ज्ञान मिलेगा, चल फिर सकेंगे, बढ़ेंगे, और क्या? और कुछ है? और क्या है? चेष्टा रहित, चेष्टा रहित, और क्या? और क्या? जीवित। क्या आप जीवित हैं? आप जीवित हैं? कैसे प्रमाण दे सकते हैं आप जीवित हैं? सांस ले रहे हैं। और क्या? हाउ यू प्रूव दैट यू आर अलाइव?
हाउ यू प्रूव? क्योंकि हम देख सक रहे हैं, आप देख सक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सुन सक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? भले बुराई को जान सकते हैं, भले बुरे को जान सकते हैं और क्या? आप चलिए दूसरे पहलू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ? मृत का परिभाषा क्या है? कुछ नहीं जानता। मृतक कुछ नहीं जानता और क्या? सांस नहीं लेगा और क्या? सोएगा और क्या? मूवमेंट नहीं होगा और क्या? नहीं करने लगा और क्या? वापस से बात नहीं करता और क्या? परमेश्वर का महिमा नहीं कर सकेगा और क्या? खत्म हो गया, शरीर मिट जाएगा और क्या? आनंद और खुशी को एहसास नहीं कर पाएंगे। आनंद और खुशी का एहसास नहीं कर सकेंगे और क्या? विवेक हो जाएगा और क्या? भैया बहन दफना दिया जाएगा। यस, आर वी अलाइव टुडे? आज हम जीवित हैं या नहीं? कहा जाता है एक घटना जो कि किसी ने सुनाया था मुझे। एक मंडली, मान लीजिए एज भर के आप अपनी जगह में काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह में रहते हैं, और एक दिन बुलाया जाता है पास्टर चर्च में, किसी का देहांत हो जाता है, किसी को पता नहीं, somebody has passed away in past it. The information passed to all the pioneers in Helsinki. All the pioneers were wondering who is that person who has expired, who has passed away. किसका देहांत हो गया? एक दूसरे को पूछने लगे फोन में, व्हाट्सएप में, कौन गुजर गए? They could not find out. चलिए हम जाते हैं पार्क स्ट्रीट में देखने के लिए कौन है वो व्यक्ति जो कि हमसे बिछड़ गए। आते हैं, अंदर आ जाते हैं, बैठते हैं अपने तो जगह में, और सामने दिखता है वो जो कॉफिन सामने रखा हुआ, बैठे हुए हैं सब, और आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। कौन कौन? हु इज दैट? Whose body is that? कौन मरा है? आपस में पूछ रहे हैं। They don't know who has died, but the body is lying here. जब पास्टर जो है सामने आकर अंतिम सांसर या अंतिम संदेश दे रहे हैं, आखिर में उसने कहा, भाई और बहनों, मैं दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमारे बीच में हमारे एक भाई या बहन नहीं रहे। मैं इस वक्त आप सबों से मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके एक एक करके आइए यहां से और अंतिम दर्शन कीजिए, आपने जगह पर बैठ जाइए। एक एक करके आए, फिर आए यहां पर, देखिए अंदर में शीशा पड़ा हुआ था, दर्पण, उसने देखा, अपना चेहरा देखा उसने, और जाके बैठ गया अपनी जगह में। विशाल आई, उसने देखा, अपना चेहरा देखा, वहां बैठ गए चुपचाप से। और जितने भी सदस्य थे, एक पायलट थे, वे लोग आए, एक एक करके देखे, सारे ने अपना चेहरा को देखे उसने कॉफिन के अंदर में, और जाके बैठ जाते और सोचने लगे, क्या हम जीवित हैं? Am I alive or am I in the coffin? सोचने वाली बात है आज, जब हम चलते फिरते हैं, हम चलते फिरते हुए भी हम मुर्दे हो सकते हैं, चलते फिरते मुर्दे। जब हम नहीं बढ़ते हैं मंडली में, जब मंडली को हम नहीं बढ़ाते हैं, if the church doesn't grow, then we are dead. You are dead living. चलते फिरते मुर्दे। यदि हम मंडली में जिस तरीके से आप लोगों ने परिभाषा दी, the way you have defined the death or the living, आपको पता है, चलते फिरते हैं, सोचते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, लेकिन मंडली कलीसिया आत्मिक तौर से वो यदि नहीं बढ़ता है तो मुर्दा है।
आज हमारा शीर्षक जिस तरह से रहा है, पुनर्जीवन या पुनर्जन्म या पुनरुत्थान या होश में आना, ये जरूरी है आप और हमको। तभी संभव होगा जब हमें पवित्र आत्मा आएगा। 5वां दिन है आज, और निश्चित मैं भरोसा रखता हूं कि पवित्र आत्मा आप और हम में समाएगा, प्रवेश करेगा, उंडाला जाएगा और हम जीवित हो जाएंगे। हम जैसे आए हैं वैसे नहीं, बल्कि बदले हुए यहां से जाएंगे। चलिए हम आगे देखेंगे हम क्या कहता है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाद कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, हड्डियों से भरी हुई थी। अब जितने लोग बंगाली जानते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ लगाया है बंगाली, इंग्लिश हिंदी मैं कोशिश किया है। यहां कहता है वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कौन सा तराई हड्डियों से भरी हुई थी? हो सकता है H4K is full of bones, हो सकता है 33 parts is full of bones। लेकिन आज क्या चाहिए हमें? पुनर्जीवन। आज हमें होश में आना है और एक जन्म लेना है। हम जानते हैं यह के पुस्तक में ये जो है एक भविष्यवाणी किया हुआ है। परमेश्वर का वचन ये के पास आता है और उसे कहा जाता है भविष्य लिखा। और आज जब मैं सोचता हूं या देखता हूं कि हमारे जो एजपुर के या जहां कभी हम हैं उस जगह जो है हड्डियों से क्या हुआ, भरा हुआ। और आगे यदि हम देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर जो है इन हड्डियों पर मांस डालने वाला है, किस तरीके से परमेश्वर श्वास देने वाला है, किस तरीके से परमेश्वर जीवन देने वाला है। जब आत्मा से आप भर जाएंगे आप आश्चर्य काम करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। मैंने सुना कल पास्टर का अनुभव, मैं बहुत ही क्या कहूं, मेरा दिल जो है छू गया। The way Pastor Paul presented yesterday just touched my heart. If you cannot preach like Paul, if you cannot sing like angels, speak like angels, you can tell the love of Jesus that He died for you. आत्मा से यदि हम भरे रहेंगे हम पौल की तरह प्रचार नहीं कर सकेंगे, हम दूध की तरह बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन मसीह यीशु का प्रेम को हम बता सकते हैं कि यीशु आपके लिए मेरे लिए मारा गया। मैं याद करता हूं एक जगह मैं प्रचार कर रहा था, मैं बताया हूं आप लोगों को, लेकिन दोबारा मैं बताना चाहता हूं। 6 वक्ता थे, 6 वक्तागण थे और ये जो प्रचार सभा शुरू हुआ शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, उसका पहले हम जो टीम में थे हम दुआ किए, प्रार्थना किए, उपवास किए, हम परमेश्वर से उनका शक्ति का हम विनती किए कि प्रभु आज हम इस गांव में प्रचार करने जा रहे हैं, हम चाहेंगे आपका आत्मा हम सारे लोगों में भर दे। हमने दुआ की और गए हम उस जगह पे शाम 6 बजे। पहला वक्ता संदेश दिए, 1 घंटा बीत गया। दूसरा वक्ता आया, उसने संदेश दिए, लोग बैठे रहे, करीब 100 लोग 150 लोग थे, संदेश दिए, सुनते रहे लोग। 1 घंटा निकल गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठा वक्ता का समय आ गया। 12 बज चुका था रात। क्या आप लोग 12 बजे रात तक बैठे रहेंगे? कठिन है, चुनौती है भैया बहनों। 12 बजे रात वक्ता का समय आया और वो समय मेरे लिए था, चुनौती भरा। प्रभु ये जो लोग बैठे हैं क्या ये 12 बजे रात जगे रहने सकेंगे क्या? चुनौती पर असंभव सा नजर आ रहा है, लेकिन मैंने दुआ की आपके हाथ में, पिता परमेश्वर आज यदि आपका योजना हो तो पिता इन लोगों को जागृति करके बना के रखिए।
मैंने संदेश दिया 12 बजे रात को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीवन का एक अनुभव, जब मैंने पीएस के संदेश, परमेश्वर का वचन, आत्मा का समान शक्ति के द्वारा सारे लोग जितना बैठे थे खड़े हो गए और आपस में विलाप करने लगे, छाती पीटने लगे, क्षमा पश्चाताप कहने लगे, हमने गुनाह किया है, आपके आज्ञा मुताबिक हमने नहीं चला है, पिता हमें क्षमा कर। पवित्र आत्मा का काम एनी टाइम वो कर सकता है, किसी पल किसी घड़ी में भी पवित्र आत्मा काम कर सकता है। एनी टाइम द होली स्पिरिट कैन वर्क, एनी टाइम एनीवेयर वेयरएवर द होली स्पिरिट कैन वर्क। आज पुनर्जीवन पवित्र आत्मा आप पर हम में आएगा। तराई हड्डियों से भरी हुई, आप देख सकते हैं हड्डी क्या है, कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने परिभाषा दे चुके हैं मृत्यु का, कुछ नहीं जानते, उसका होश नहीं है, मरे हुए हैं, प्यार नहीं है, मेहनत नहीं है, समझ नहीं है, कुछ नहीं है। आज आप पर हम यहां बैठे हैं, हमारा दशा क्या है? क्या दशा है? हम चलते फिरते हड्डी है क्या? चलते फिरते मुर्दे हैं क्या हम? क्या हम बढ़ रहे हैं आत्मिक तौर से? क्या हमारा टारगेट बढ़ रहा है? क्या हमारा मंजिल बढ़ रहा है? यदि हम जीवित है तो निश्चित बढ़ेगा, और नहीं है तो निश्चित तौर से आप देखिए तस्वीर हड्डियों का तरह है। Is my target area growing? Is my church growing? Am I growing? If I am living, I must grow. If my church is living, it must grow. If my target is living, it must grow. Unless, जब तक पवित्र आत्मा को हम ग्रहण नहीं करते, उसको स्थान नहीं देते हमारे जीवन में, तब तक हम एक हड्डी की तरह रहेंगे, बिना फल रहित। आज सोचने की बात है, देर नहीं हुई है, अब भी समय है। It is not too late. Still there is time now. It is time that we invite the Holy Spirit to come upon us. तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की ताप पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखे थी। कैसे थे वो हड्डियां? सूखे थे, कोई होप नहीं उसमें कि जीने का, कोई भी चांस नहीं है, पूरी तरह सूखे हुए। आप कितना भी स्लाइन चढ़ाइए, कुछ भी विटामिन दीजिए, कोई चांस नहीं है उसमें मांस आएगा। ऐसे दशा, ऐसे हालत। क्या आप पर हमारा हालत क्या है? हमारा हालत क्या है आज? कभी हमने सोचा है, एक मिनट टाइम लेके, have we ever thought what is my condition right now? Just for a minute if we take and think, what is my condition in my target, in my church, in my home? सोचने वाली बात है। आत्मिक जीवन, जब हम प्रभु के दास, दासी, उसके लोग हम कहलाते हैं, हमें जीवित होना है। क्या ये हड्डियां जी सकती है? Can these bones live? क्या आज मैं जी सकता हूं आत्मिक तौर से? क्या आज आप बैठे हैं अपने क्षेत्र में, क्या आप जी सकते हैं? हम तो जीवित हैं, चलते फिरते मुर्दा, लेकिन क्या हकीकत में आत्मिक तौर से आत्मा भरा हुआ क्या हम जीवित हो सकते हैं? यह सवाल अपने आप को पूछिए। क्या यह हड्डियां जी सकते? क्या मैं जीवित हो सकता हूं आत्मिक तौर से? Can I be alive in my target, in my church, in my home, in my family, in my society? Can I be alive, filled with the Spirit? यह संभव है, यह संभव है परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ हमें उनके पास आना है। तब
उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस थमाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर क्या कहता है? सांस थमाऊंगा और क्या हो जाओगे? जी उठोगे। आज यदि हम एहसास करते हैं कि हम चलते फिरते मुर्दे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? आप और हम में अपना सांस समाएगा और हम क्या हो जाएंगे? हम जी उठेंगे। क्या हम एहसास करते हैं? हम 3 साल से हम एक टारगेट में हैं। हम for 3 years I have been in that target. Nothing has been done. I am dead. क्या आज परमेश्वर आप में अपना सांस समा सकता है? क्या आप जी सकते हैं उस टारगेट में? उस टारगेट में जब 3 साल बीत चुका हो, अब कुछ नहीं हुआ, क्या आज परमेश्वर अपना आत्मा वहां दे सकता है? इन हड्डियों औषधि करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा। God wants to give us His life again. वो हमें देखना चाहता, जीवित हम पुनर्जीवन आत्मिक तौर से वो देखना चाहता है वो, और हम क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे, समाधि हो जाएंगे हम। क्या आप नहीं चाहते हैं? क्या आप जीवित होना नहीं चाहते हैं? ना कि हम चलता फिरता मुर्दा ही हम पसंद करते हैं। हम परमेश्वर का सांस हम में आना चाहिए और हम क्या जीवित हो जाएंगे, और उसका कार्य जो है सोनारपुर में क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे फल आने लगेंगे। बालीगंज में क्या होने वाला है? बहुत सारे फल आएंगे जब परमेश्वर का श्वास आप में समा जाएगा। आप जीवित हो जाएंगे, अपने बल अपने ताकत से नहीं, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा ही हो सकेगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्य करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठे होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ये सारी जो बातें हम देख रहे हैं आज इस वचन से, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। चाहे हड्डी क्यों ना हो, चाहे मिट्टी क्यों ना हो, चाहे मुर्दे क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा यह संभव है। और आज आपका हमारे जीवन में यदि कोई भी कमी घटी है, तो निश्चित परमेश्वर के द्वारा संभव है कि हमें परिपूर्ण करेगा। No matter what, it is everything possible with our Lord. He is going to fill us with the flesh. He is going to give the flesh, the spirit, and the life that we can work, we can be witness all over Kolkata. क्या आप चाहते हैं आपका शरीर में मांस आ जाएगा, नया मांस? क्या आप चाहते हैं एक सांस आ जाए आप में? क्या आप चाहते हैं एक समान शक्ति आ जाए आप में, एक नया जीवन आप में आ जाए? क्या आप चाहते हैं? यस, वी नीड, हमें चाहिए। हमने देखा है 3 सालों में 4 सालों में हमें वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर देना चाहता है। आप देख सकते हैं आहट आई और भूकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठे हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब परमेश्वर का वचन आता है तो हड्डी भी जुड़ जाता है। जब परमेश्वर का वचन आता है उसमें मांस भी आ जाता है। जब परमेश्वर का वचन आता है उसमें सांस भी आ जाता है, एक जीवित प्राणी बन जाता है, बड़ा पुरुष बन जाता है, जो कि उसके गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ही परमेश्वर है हमारा, असंभव को संभव करने वाला। Our God is Almighty God. He does the impossible. Whatever is impossible, He does it. Everything is possible in His sight. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्य न कर। और सांस से भविष्य नहीं करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात के रोगों में से समा जा, कि वे क्या हो जाए? जी उठे।
ये विषय है हमारा जी उठना, टू बी अलाइव अगेन। ये आज का संदेश जो है, पवित्र आत्मा और पुनर्जन्म, दोबारा जी उठना। हम शिथिल हो गए हैं, सोते हैं 10 बजे तक, खाते पीते हैं, समय निकल जाता है, रात होता है, फिर सोते हैं हम। किस तरह से हम जीवित हैं? कोई कार्य नहीं, सिर्फ खाते पीते सोते उठते जाते बस, और परिश्रम काम नहीं। लेकिन आज हम चाहते हैं उसका श्वास आ जाए, उसका मांस आ जाए हम में, उसका आत्मा आ जाए और हम एक जीवित हो जाए। पुनर्जन्म, जो पहले हम थे वैसा नहीं, बल्कि हम चलते फिरते एक जीवित इंसान, जो कि हम प्रभु का काम कर सके। भाई और बहन, मैं उम्मीद करता हूं आप एहसास किए होंगे आज कि 3 साल मैंने क्या किया। What have I done for 3 years? What have I done for years? But today it is time that we invite the Lord to give us breath, to give us the flesh, to give us the spirit, so we can live again. ये मनुष्य के सांस से भोजने का हम देख सकते हैं। जस्ट हमने तस्वीर यहाँ लगाया ताकि हम समझ सके, अपने आंखों से हम देख सके क्या कह रहे हैं। और सांस से भोजने का कहता है, हे सांस, परमेश्वर यह कहता है कि चारों दिशाओं में आकर इन हाथ की ओर से समा जाता है, क्या हो जाए, जी उठे। आज हमें जी उठना है, जागना है, जागृति चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम बैठ ना सके, बल्कि हम उठकर खड़े हो जाए। अब जाए हम बाहर गवाही के लिए, जेरूसलम, जूडिया, समारिया और दुनिया के छोर तक, कोलकाता के छोर तक। वैसा आत्मा परमेश्वर देंगे हमें, वैसा आत्मा देंगे परमेश्वर, वैसा जीवन देंगे। हम जी उठेंगे तो हम बैठेंगे नहीं दोबारा। Today God is going to give us such life that we can't sit idle. We have to move. We have to be witness. और सिर्फ उसका आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। चलिए हम उसका आत्मा का हम खोज करें, उसका आत्मा का हम निमंत्रण करें, उसका आत्मा को हम प्राप्त करें। फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के सामने ये हड्डी इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। ये इस्राएल की जगह मैं कहना चाहता हूं हेड के उपमा है। दिस नॉट इस्राएल, इज हेड के, दिस कोलकाता पार्क से। बहुत गंभीर बातें हैं यहाँ। कहता है, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कर चुके हैं। क्या हमने एहसास किया ऐसा कि प्रभु हमें कुछ नहीं है, आशा नहीं है? यदि नहीं है तो हम कहां आशा पाए? हम प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु में हम आए, आशा पाए। हम चलिए हम अपने दिल के गहराई से परमेश्वर का निमंत्रण दे कि वो हमें अपना आत्मा से हम भर दे, वे अपने मांस में हमें, ताकि हम उसका गवाही दे सके अपने टारगेट में, पूरे कोलकाता के हद छोड़ तक। ये इस्राएल के घराने हैं। मैंने कहा ये एज छोड़ के Israel, the bones of Israelites, but I say today the bones of Hezbollah. Let us seek the Spirit of the Lord. हम सीख रहे हैं पूरे 10 दिन के लिए, 5वां दिन आज हम पवित्र आत्मा को हम स्थान दिया। ईश्वर का पवित्र आत्मा, सिर्फ उसी से हम काम कर सकेंगे। कहता है यहां पर, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब वे मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगा कि मैं यहोवा हूं। जब हम जीवित हो जाएंगे, उसका आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, हम जब उसका हम गवाही देंगे, हम जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर हमारा है। अब तक हमसे काम नहीं हुआ है, हम नहीं जाने हैं प्रभु को, उसका ताकत को, उसका सामर्थ्य हमने अनुभव नहीं किया है। लेकिन जब हम ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे उसके आत्मा को, हमसे बड़े बड़े काम होंगे। हम जानेंगे यहोवा ही काम कर रहा है।
चलिए हम सोच गहराई से कि वो समय बीतता जा रहा है. टाइम डजंट वेट फॉर अस, इट्स पासिंग बाय. जितना समय बीतता जा रहा है, वी आर कमिंग मोर नियर टू द सेकंड टाइम. इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालो, तब हे मेरे प्रजा के लोग, तुम जान लो कि यहोवा मैं हूं. हम जान जाएंगे कि यहोवा हमारा प्रभु है. मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा. तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने या कहा है और किया भी है. यहोवा की यह वाणी है. जब यहोवा कहता है वो करता है. When God says he does, जब वो कहता है वो करता है. क्या आज हम उनको मौका देना चाहते हैं? क्या हम उनको मौका देना चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में अपना मांस हमें दे, अपना आत्मा दे, अपना शक्ति दे? क्या हम चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मैं आपके बल, अपने ताकत से मैं कुछ नहीं कर सका अब तक, लेकिन आप मुझे चाहिए, उसका आत्मा, उसका शक्ति चाहिए. और मैं यही कहूंगा कि मेरा यहोवा ये परमेश्वर है. अंत की ओर, टुवर्ड्स द एंड, हमारे प्रेरित ये काम 2:38 में कहता है. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. अपने पापों से क्षमा मांगो, पछताओ और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. When we confess, we are going to receive the power of the Holy Spirit. For the Holy Spirit. दूसरी, और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं. We need to obey. पछतावा करना है अपने पापों से. पवित्र आत्मा आएंगे हम में, उंडेला जाएगा. उसके बाद हमें आज्ञा मानना है. We need to obey. उसके बाद कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे. प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. That's why we have organized this 10 days of prayer to get the power of the Holy Spirit. Without prayer, we can't get. We need to come together on our knees to the Lord. Then He's going to fill us with the Spirit. इसलिए 10 दिनों का प्रार्थना रखा गया है ताकि हम जो है S4 में जहां पर भी रहते हैं, विभिन्न जगह में हम काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रार्थना का ताकत चाहिए, आत्मा चाहिए हमें, ताकि हम आगे काम कर सकें. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? If you ask the Father which is in heaven, He's going to give us the Holy Spirit. If we ask, हम नहीं मांगते हैं कई बार, सिर्फ हम मांगते हैं पिता हमें पैसे दे, पिता हमें गाड़ी दे, पिता हमें ये दे, वो दे. We ask for such things that we need. Our family give us money, the car, or whatever we want. But we need to seek the Holy Spirit. If we seek diligently, sincerely, God is going to give us. आखिर में यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें. By faith, let us accept the Holy Spirit. By faith, क्या हम विश्वास करते हैं? हमें विश्वास करना चाहिए. हमने देखा पछताना, पाप का क्षमा मांगना और हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलने वाला है. हमें आज्ञाकारी होना है, तुम जाओ, गो. जब हम आज्ञा को मानते हैं, हमने आत्मा है. When we obey, God is going to give us His Spirit. Go ye therefore, and His Spirit will come upon us if you obey. When you pray together, we are going to feel the presence of the Holy Spirit. We will be moved by the Spirit. हम हिलाए जाएंगे
सिर्फ वो जगह नहीं लेगा, हम हिलाए जाएंगे। Only the place will not be moved, but we are going to be moved by the Spirit. चलिए हम विश्वास करें और भरोसा रखता हूं कि जब हम इन बातों को याद रखें अपने जीवन में, निश्चित तौर से परमेश्वर जो है अपना प्रतिज्ञा मुताबिक वो हमें आत्मा देंगे। God, according to His promise, is going to give us abundance of Holy Spirit, and He is going to strengthen us in our work wherever we are. May the good Lord bless us as we continue to seek the Lord in prayer for the Holy Spirit. Thank you so much. God bless you all.
we want to certainly praise God for the message that has come to us this morning. निश्चय कर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं जो संदेश हमारे बीच में आज सुबह आई इसके लिए। Valley of dry bones. तराई सूखी हड्डियों का, But God is putting flesh and sinews. लेकिन परमेश्वर उस हड्डियों में मांस और पेशियां भर रहा है। Today He is breathing the Holy Spirit. आज वह पवित्र आत्मा उंडेल रहा है। I want to very specially thank our lay members who have come from Picnic Garden. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष करके हमारे लेमैन हैं जो पिकनिक गार्डन से आए हैं। Can we kindly request you to stand? We want to welcome and recognize you. हम निवेदन करते हैं कि आप खड़े हो जाएं, हम आपको पहचान कर आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। All those who have come to visit. और जितने कोई आप आए हैं, आप सबका हमारे से स्वागत है। स्वागत है। From Jan Bazar. जान बाजार से जितने भी आए हैं, All those visitors who come from Jan Bazar, निवेदन आपसे निवेदन है कि आप खड़े हो जाएं। स्वागत। आप सबों का स्वागत है हमारे Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Anybody else who is a visitor here, और कोई हमारे बीच में कोई मेहमान है जो who is not a H4K member, but who is here, जो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, we want to thank you and God is going to bless you. हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's all stand for prayer. आइए हम खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। I'm going to invite Mr. Joy to come forward and offer the closing prayer. और हम जोर से निवेदन करते हैं आकर के अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। God bless you. आइए प्रार्थना करते हैं। আসুন প্রার্থনা করি। স্বর্গীয় মহান দয়ালু পিতা, প্রভু তোমার ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি বিশেষ দিনে তোমার দাস দিয়ে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করেছো প্রভু। প্রভু তোমার বাক্য দিয়ে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করেছো। আজকে তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছো প্রভু, যাতে আমাদের এই শুকনো হাড্ডিতে তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে আমরা আবার জীবিত হতে পারি প্রভু। প্রভু আমরা সত্যি মৃত ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি প্রভু, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাদেরকে চাঙ্গা করে তোলো প্রভু, যাতে আমরা আমাদের ঘরের বাইরে বেরোতে পারি আর এই কলকাতা শহরকে তোমার জন্য জয় করতে পারি প্রভু। প্রভু তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাদের সবাইকে সাহায্য করো প্রভু। আমরা কি চাইবো তুমি সবই জানো। আমাদের আরো যে বাকি 5 দিন প্রার্থনা সভা আছে প্রভু, আমাদের সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো। আমরা যাতে এই 10 দিনে তোমার পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে পারি প্রভু, যা 3 বছরে করতে পারিনি প্রভু, যা সেই সব কাজ যেন 1 মাসে করতে পারি প্রভু। এই ছোট্ট প্রার্থনা তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশুর নামে চাই, সর্বের শ্রবণ প্রার্থনা। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the sweet communion and fellowship of the Holy Ghost abide with each and every one of us in a very special way upon H4K workers from now and forevermore. Amen. Pastor, we want to say a very big thank you to you for having come despite your very busy schedule